Hello everyone. So we will continue the previous topic what we have discussed about vapor pressure. थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया because of some technical issue. Still, I am trying to continue the same topic, vapor pressure. And here today we are going to discuss about vapor pressure in case of non-volatile solute dissolved in solvent. Right? Actually, when we discuss in our NCERT syllabus, when we discuss about solution, we have homogeneous mixture here in which either solute can be of volatile nature or it can be of non-volatile nature. We have two cases. Today we will discuss case 1 when we have volatile solvent and in that volatile solvent we have non-volatile solute. Okay, so one by one we will see today vapor pressure in case of solution case 1. In case 1 we have vapor pressure of solution Vp, vapor pressure of solution containing non-volatile solute. Non-volatile solute. It's very important topic and interesting also. First you try to understand the basic concept behind this. Numerical will be very simple on this. Vapor pressure of solution containing non-volatile solute. Non-volatile solute. Now, when we talk about solution, we all know solution is made up of two terms, solute and solvent. Solute and solvent. In general, in our NCERT or in reference books also, solute is generally represented by B and solvent is represented by A. Now, few terms we are going to write here to basically discuss about solute and solvent. First we will discuss about nature. That means we have to discuss about the nature of solute and solvent particles. Second we have to discuss about physical state. Physical state. Third we have to discuss about vapor pressure. We have to discuss about vapor pressure. Fourth we have to discuss about moles. And fifth we have to discuss about mole fraction. These all five are very important. See, before we go through this, you just try to understand this diagram. Suppose we have two closed containers, container A and container B. In this, we have only pure solvent. We have pure solvent, which is of which nature? Volatile nature. Which is of volatile nature. This is suppose A. In this case what we have some solvent and we have added some solute B into this. So what happens here, when solvent will evaporate, these vapors will exert some pressure on this surface that we have defined as this vapor pressure. Pressure exerted by vapor phase on the surface of liquid. But in this particular case, initially suppose here we have 5 particles on the surface or 6 particles on the surface. This all belongs to what? Pure solvent. But in this case, as it is a homogeneous mixture, we have solute as well as solvent. So in this case, some of the surface area is blocked by what? Non-volatile solute. So the number of particles going in vapor phase will be decreased, and because of this, pressure exerted here will be less as compared to this case. This is actually pressure exerted by pure solvent, which we denote by P0A. That is your vapor pressure in form of pure solvent. But here pressure exerted is denoted by PA. This is the vapor pressure of solution. Vapor pressure of solvent in case of solution. We will discuss all these terms. But you just try to understand the difference that when we have pure solvent, we have P0A. But when we have solvent plus solute, and if solute is of non-volatile nature,
definitely vapor pressure is going to decrease there. So if we try to write the relation, we can write P naught A must be greater than PA. Hope so this point is clear, right? This point we will discuss once again once we will complete all this. Now if we try to conclude from this, okay, what are the points? If we see nature of solute must be of which nature? Volatile or non-volatile? This is of non-volatile nature. Non-volatile. What about solvent? This must be volatile one. Solvent must be volatile. In our syllabus, we have only volatile solvent. Now, physical state. In the previous lecture also we have discussed that in general, physical state of solute we take solid because we are taking or we are talking about non-volatile, and normal examples we have discussed about glucose, urea and sucrose, right? Similarly, if we discuss about solvent, in general solvent we are taking in which form? Liquid form. Physical state must be liquid here. What will be vapor pressure? Because of solute, vapor pressure must be 0. But here, because of solvent, vapor pressure will be denoted as P naught A. What about moles? How to calculate moles of B? Moles of B can be written as weight of B divided by molecular weight of B, and moles of A can be written as weight of A divided by molecular weight of A. Now mole fraction of B can be represented as moles of B divided by moles of A plus moles of B, and mole fraction of A can be represented as moles of A divided by moles of A plus moles of B. ध्यान से देखो इसको, इसमें कुछ चीजें जो है ना, these all terms we know, but why I have written it here so that you will be familiar and you can use all these points in the next topic, that means the coming topic. Quickly write it down. So mole fraction of A and mole fraction of B we have written, and we all know that summation of mole fraction of solute plus solvent is equal to 1. ये हमेशा याद रखना है कि किसी के भी अगर टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1. अब जरा ध्यान से देखो, I have drawn two closed container. In first case we have only pure solvent. What we have? Only solvent. So in this case, whatsoever vapor will form, that vapor will form only of pure solvent, and whatsoever pressure is exerted on the surface of liquid, it's only because of pure solvent, and that is represented by P naught A. यहाँ तक clear है? Now, in this solvent, now I have added B as solute, and this B is non-volatile nature. हम पूरे टॉपिक ही वही पढ़ रहे हैं, किसके लिए? Non-volatile. So this B is of non-volatile nature. So what happens? A plus B, where we get solution, this is non-volatile. So this will also form a homogeneous mixture. देखो ध्यान से, मैंने दो अलग अलग कलर के इंक यूज किया यहाँ पे, right? A represents solvent and B represents solute. So when it form a homogeneous mixture, this B will also occupy some of the surface part, and we all know that evaporation take place from surface. So here what will happen? A will evaporate or A will vaporize, they will exert pressure on the surface, B तो evaporate ही नहीं होगा, and if B cannot evaporate, this cannot participate in vapor pressure. So whatsoever vapor pressure here we have, this is very very important to understand. Vapor pressure in this container 2 is only because of volatile solvent A. It's only because of A, it's not because of B. And that what we represent, this is represented as A. अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, इसमें समझना, यहां इवोपरेशन ज्यादा हो रहा होगा क्योंकि केवल प्योर सॉल्वेंट है, यहां इवोपरेशन कम हो रहा होगा. ना वन बाय वन अगर हमने इस सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट मिलाते गए, सपोज वन मोर पार्टिकल आई एम टेकिंग ऑफ सॉल्वेंट एंड आई एम रिप्लेसिंग दिस बी फ्रॉम हियर, ठीक है, फिर मैंने दूसरा सॉल्वेंट लिया और इस सॉल्यूट को मैंने रिप्लेस कर दिया. वन बाय वन ऑल सॉल्यूट आई एम रिप्लेसिंग फ्रॉम हियर विथ वोलेटाइल सॉल्वेंट. हमने क्या किया?
सॉल्यूट को रिप्लेस कर दिया सॉल्वेंट से. सो व्हाट विल हैपन? स्लोली एंड स्लोली एज वी आर रिमूविंग दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर. क्यों? क्योंकि अब मैं यहां पे वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूं. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर. अब जरा ध्यान से देखो. कैन वी से दैट इन कंटेनर 2 वेयर वी हैव सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute. मोल फ्रैक्शन, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसमें सॉल्वेंट बढ़ाते जाऊंगा, सॉल्यूट कम करूंगा, वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा. एंड दिस इज नथिंग बट हेनरीज लॉ. ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये चीज दिया हुआ है. इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं पहले, उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे. डेफिनेशन लिखिए इसका. ओके, सो हियर वी हैव रॉयल्स लॉ. ओके, आई थिंक बाय मिस्टेक आई स्पोक Henry's law, right? It's Raoult's law actually. Raoult's law, vapor pressure of any solution containing non-volatile solute. This is very very important. This is for non-volatile solute. Is only because of solvent. We have already seen that it is not affected by solute particles, and it is directly proportional to mole fraction of solvent. देखो जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था? वेपर प्रेशर भी अपना बढ़ रहा था. दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव रिटन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन. देखिए, अगर आप डेफिनेशन को समझते हैं ना तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और मैं हमेशा ये चीज बच्चों को बोलता हूं दैट यू हैव टू राइट एनसीईआरटी लैंग्वेज, एंड एनसीईआरटी लैंग्वेज इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स आर वेरी सिंपल एंड क्लियर. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? मैथमेटिकली ऑल्सो दिस वी आर गोइंग टू प्रूव, राइट, दैट वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन containing non-volatile solute is only because of solvent. This point also you should keep in mind, and it is directly proportional to mole fraction of solvent in the solution. Hope this point is clear. Let's go ahead. Now see, if mathematically if we see what we can write, so, in terms of solvent, PA directly proportional to mole fraction of it. Can we write this? Now, when we replace this mole, proportional sign, PA is equal to KA into XA, where XA is the mole fraction, PA is the vapor pressure, right? Vapor pressure of solution. This is not in the pure form. This is of solution I am talking, right? In general, one more thing I can tell you. In most of the question, P naught A will be given. ये ध्यान रखना है हमें, और ये जनरली हमें निकालना होता है. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता है. प्योर फॉर्म में हमें हमेशा वेपर प्रेशर की वैल्यू दी होती है. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब जरा ध्यान से देखो, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम अभी चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और भी ज्यादा. कैसे इसको सिंप्लीफाई किया गया था ये जरा समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास प्योर फॉर्म में, ठीक है, जब हमारे पास प्योर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा? 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा? 0, जब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था. एंड वी ऑल नो दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. अगर ये 0 है तो XA कितना हो गया? 1. क्लियर? नाउ व्हेन ओनली प्योर सॉल्वेंट वी हैव, वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय व्हाट? वेपर प्रेशर वी हैव डिनोटेड बाय PA नॉट. तो जरा ध्यान से देखिए, इफ आई पुट x is equal to 1, x is equal to 1 in pure form, x a is equal to 1, then PA naught can be written as K, because PA will become PA naught when we have pure solvent. अब इस PA naught की वैल्यू को यहां से उठा करके आप K की जगह पे पुट कर दीजिए, तो फाइनल जो हमारा डेरिवेशन आ जाता है, ये आ जाता है P naught A into XA. This is the first expression which always we have to keep it in our mind, where PA is the vapor pressure of solution and P naught A is the vapor pressure of pure solvent into mole fraction of A. इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे? हमने अभी यहां क्या लिखा? XA plus XB is equal to 1. तो XA can be written as 1 minus XB. उसको यहां पुट कीजिए, राइट? If we put this value here, then PA is equal to P naught A 1 minus XB, and from here we can write
P naught A minus P naught A XB. Hope these all points are clear to everyone. Now, ये छोटा सा एक डेरिवेशन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा. अब हम इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं. नाउ वी कैन राइट P naught A minus PA. इसको रीअरेंज कर लेना. दिस विल कम दिस साइड, दिस विल गो दिस साइड. P naught A XB. दिस पर्टिकुलर टर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें काफी टाइम कंफ्यूज रहता है. P naught A, अब जरा देखो ये वेपर प्रेशर किसके फॉर्म है? प्योर फॉर्म. This is in case of pure solvent and this vapor pressure is in case of solution, right? So this is actually known as lowering of vapor pressure. ये relative lowering नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, this is lowering of vapor pressure, very very important. Now further we can write, ये देखिए बड़ा छोटा सा डेरिवेशन आता है इसका, P naught A minus PA डिवाइडेड बाई P naught A इज इक्वल टू XB, और इसको बोलते हैं RLVP. ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज योर इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज नोन एज योर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. राइट? क्लियर? आगे देखते हैं. क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान से देखना है अपन को कि P naught A माइनस PA डिवाइडेड बाई P naught A कैन बी रिटन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और इस टोटल टर्म को हम क्या बोलते हैं? RLVP. ये हमारा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, नंबर डिपेंडेंट गेम है, ये पूरा देखेंगे आगे चल के. हम इसको RLVP बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब इससे भी हम बहुत सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं. कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ B को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट माइनस PA divided by P naught A. This is equal to moles of B divided by moles of A plus moles of B. क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आपसे. ये जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है. हमारे पास इसका मोल्स दिया रहेगा, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना होता है. जनरली ये हमारे पास दिया रहता है, वेट भी दिया हो सकता है. इफ वेट इज गिवन वी कैन कैलकुलेट मोल्स, राइट? एंड इफ मोल्स आर गिवन, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट दिस. समटाइम्स solvent will be missing. So if solvent is missing, what we have to consider? We have to consider water. ठीक है, तो ये सब आसान आसान से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. बोर्ड में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम. ठीक है, और आगे देखें. यहां तक क्लियर है? अब जरा देखो इसको कैसे इसको मॉडिफाई किया जा सकता है. इफ आई राइट दिस, द एक्सप्रेशन व्हाट वी हैव डिराइव्ड, NB divided by Na plus NB, where Na and NB are the moles of solute and solvent respectively. अब हमें क्या करना है ना कि इंटायर इक्वेशन बोथ द साइड जस्ट रिवर्स, पूरा ऐसे लेकर के इसको पलट के लिखते हैं हम. P naught A डिवाइडेड बाई P naught A माइनस PA इज इक्वल टू Na प्लस NB डिवाइडेड बाई NB. अब दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है. नेक्स्ट स्टेप में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं इससे. ठीक है, क्यों कर रहे हैं इसका रीजन मैं बता दूंगा आपको. दिस इज इक्वल टू Na प्लस NB डिवाइडेड बाई NB माइनस 1. यहां से हम क्या लिख सकते हैं? P naught A माइनस P naught A प्लस PA डिवाइडेड बाई P naught A माइनस PA, एंड दिस इज इक्वल टू Na. ये बहुत जगह आपको यूज होगा. क्यों मैं ये डिराइव करके दिखा रहा हूं आपको, इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज योर NB. अब जरा ध्यान से देखो तो P naught A कैंसल, NB कैंसल. नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ, अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो वी आर लेफ्ट विथ PA डिवाइडेड बाई P naught A माइनस PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. अब इसको वापस से जैसे हमने यहां फ्लिप किया था, वापस से रिवर्स करके, और हमारे पास जो यहां पे इक्वेशन मिलेगा ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट P naught A माइनस PA डिवाइडेड बाई PA इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B बाई मोल्स ऑफ A. ठीक है,
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स के टर्म में भी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा इसको देखो। हमारे पास अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहां हमारे पास सिर्फ पी नॉट था, ठीक है, ये फाइनल यहां जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया, और यहां पे हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी ए था डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। तो उस केस में हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था, बट नाउ वी हैव ओनली मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हियर। तो कई बार हमें सिर्फ यहां से काम अपना चल जाएगा, तो इसलिए ये इक्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल इसकी वैल्यू एक देखते हैं कि ग्राफिकली हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी और डिस्कस करते हैं। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम देखेंगे हमेशा कि वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ। इसका रीजन क्या है कि in other graph like a straight line curve and all, we have seen different type of graphs in other chapters. In this particular chapter we are talking about mole fraction. तो मोल फ्रैक्शन की बात हम करेंगे तो वहां पे दो कंपोनेंट कम से कम होते ही हैं। सो दैट्स व्हाई हियर व्हेन वी टॉक अबाउट वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, सो इन दिस पर्टिकुलर केस इनिशियली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0 हमने लिया है। ए मींस सॉल्वेंट एंड बी इज सॉल्यूट। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, अभी मैं इसको नीचे वाले को बात नहीं करता, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट के टर्म में बात करें। तो इनिशियली इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A is 0, slowly and slowly when we go from this side to this side, mole fraction is increasing. कब तक बढ़ेगा ये? मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी मोल फ्रैक्शन की? 1। तो जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगी तो इसमें जो वेपर प्रेशर आएगा इसको हम क्या बोल देते हैं, P नॉट A। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको हटा दूं और मोल फ्रैक्शन ऑफ B के टर्म में बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे हो जाएगी इसकी, ठीक है, इस साइड, और ये धीरे धीरे डिक्रीज होती है। इसके बारे में डिटेल्स में हम और डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक एक क्वेश्चन देखते हैं जो भी हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया उसके ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है बट 5 पार्ट्स हैं, उसको ध्यान से करता है एक एक करके। सो हियर वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने पिछले क्लास में बोला था कि व्हेनेवर वी गेट अ फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, ये तो नॉन वोलेटाइल होगा सॉलिड पार्ट में, मैंने उस दिन लिखवाया था। सो दिस इज योर सॉल्यूट, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करते चलो। दिस इज योर सॉल्यूट। 45 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वी हैव एट सर्टेन टेम्परेचर। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, दैट मीन्स वी हैव P नॉट A गिवन हियर। P नॉट A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300 mm of Hg। अब एक चीज जरा ध्यान से समझो, इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इटसेल्फ, हमें प्रेशर को कन्वर्ट करने की एटीएम में जरूरत नहीं है। लाइक हमने गैसेस स्टेट या अदर चैप्टर्स में क्या किया था कि वी हैव चेंज द प्रेशर इन एटीएम। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने आर की वैल्यू 0.08 के टर्म में लिया था। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि तुम्हें एमएमएचजी में दिया है तो तुम एमएमएचजी में भी ले सकते हो, इसको कन्वर्ट करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। नाउ 1 by 1 वी विल सॉल्व। अब देखो इसमें क्या क्या पूछा हमें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एंड वी हैव मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज स्मॉल m. This we can easily calculate. How? Because mass of solute and solvent is given. So let us first calculate moles of A. Moles of A. A means solvent. तो moles of A कितना हो जाएगा? Given mass upon molar mass 18, water का है, तो this will be 9 by 2. Sorry, 5 by 2. 5 by 2. Similarly, if we calculate moles of B, what we will get? Given mass upon molar mass of urea is 60. This will be equal to 1 by 2. तो मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी अब तो निकल गया हमारे पास, तो हम एक एक करके मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी हाउ मच? मोल्स ऑफ ए, फॉर्मूला लिख लेंगे, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, दिस विल बी 5 by 2 प्लस 1 by 2, तो दिस विल बी हाउ मच? 5 by 6. Similarly, mole fraction of B will be how much? 1 by 2 divided by 5 by 2 plus 1 by 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 by 6. दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब जरा ध्यान से देखो कि हमने थोड़ी देर पहले जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिखा था, राइट? इफ आई राइट हियर
इफ आई राइट हियर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब हमने लिखा P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए, तो ये किसके बराबर था? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के था। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो भी है हमारा, वही क्या है? RLVP। दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू RLVP। तो हमारे पास क्या क्या हो गया? RLVP हो गया और हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी हो गया। हो यहां तक क्लियर है? अब इसको एक बार आप लिख लीजिए, देन वी विल सर्च फॉर अदर क्वेश्चन दैट व्हाट वी कैन डू। क्लियर? सेलेक्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब अगला क्या है? हम वेपर प्रेशर निकाला, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। PA नॉट इज गिवन ऑलरेडी 300 और PA की वैल्यू आई थी हमारे पास 5/6। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 250 आ जाएगा ये 50 इंटू ये 50 वाट। ठीक है, 250 mm ऑफ Hg, 250 mm ऑफ Hg। दिस इज योर PA। अब कई बार बच्चे क्या करेंगे ना कि वेपर प्रेशर के टर्म में फटाफट कुछ गलतियां कर देते हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करूंगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी हाउ मच? वेपर प्रेशर तो हमारे पास ही आ गया, बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था हमारे पास? PA नॉट माइनस PA। दिस इज द फॉर्मूला। PA नॉट की वैल्यू कितनी है? 300 माइनस PA की वैल्यू कितनी निकल गई? 250। तो दिस विल बी 50 mm ऑफ Hg। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यही है कि आपको थ्योरेटिकली चीजों को समझना है। अगर थ्योरेटिकली आपने वेपर प्रेशर नहीं समझा, आपने वेपर प्रेशर इन प्योर सॉल्वेंट फॉर्म नहीं समझा, देन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो फर्स्ट यू गो थ्रू कंटेंट, try to understand the theoretical meaning of vapor pressure and vapor pressure in case of solution, vapor pressure in case of pure solvent, what is the meaning of lowering of vapor pressure, what is the meaning of relative lowering of vapor pressure। अगर theoretically ये सब चीजें clear है ना, then numerical will be very simple of this particular segment। I hope these points are clear। Now next part we have molality। यहां तक सबको clear है? molality तो और आसान है इसमें। molality means moles of solute presenting 1 kg of solvent or per kg of solvent। यही होता है हमारे पास। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही तुमने लिखा था, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन मत ले लेना इसमें। मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा बी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स कितने आए थे इसके? सॉल्यूट के 1/2। मास कितना हमारे पास? 45 ग्राम दिया हुआ है, दैट वी हैव टू टेक इन केजी, है ना। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। दिस विल बी 1000/90, दिस विल बी 100/9 m। ठीक है, ये एक आसान सा न्यूमेरिकल था। इसके ऊपर और भी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे अगले सेक्शन में, और तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।